Hello friends, welcome back to the Prep Zone Challenger series. For all the students who are new to this platform, this is a Challenger series which we have started, we as in the entire team Prep Zone. And here the aim is that I am going to challenge you each and every day with just one little quant question. This will help you get motivated and in your preparation for CAT 2020. In addition to this, if you want to attempt daily RCs and some really good questions of quant and DILR, you can refer to the Facebook group which is also mentioned in the description. And if you want access to the enrolled batch of students of PrepZone, you can contact us in the given description's phone number. So that's it. So far we have done around 7 questions of quant as a challenger series. All the questions were from functions, and today we are going to do a very interesting question, and this is really a challenger. I'll be so much happy to see even 10% of you doing it right. So do let me know in the comment section how many were able to solve this question and in how much amount of time taken. So let's very quickly move on to the question number 8, and here it goes. So the question says you have to find the total number of solutions for e to the power mod x equals to x cube. This is the question. I'm repeating the question. Find the total number of solutions for e to the power mod x equals to x cube. And these are the options which are given to you. So now you can pause the video, you can take your time, attempt this question and let me know in the comment box कि आंसर क्या आया इन पांचों ऑप्शंस में से, क्या आंसर आया एंड कितना टाइम लगा इस क्वेश्चन को करने में. दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स which I love to teach to my students, and let's see how many of you get it right. Yes, so let's move on to the solution part. So tell me how many of you got 1 as the answer. I'm sure around 90% of you, in fact 95% of you would have got 1 as your answer, and I'm not very happy to say that you all are absolutely wrong. 1 is not the answer to this question, which of course looks like the answer. So let us go through the approach, and this is a very important concept for your CAT. You can learn this in the functions and graphs topic. So let's see. I need to find the total number of solutions, and these are two different types of functions. This is exponential function and this is algebraic function. So of course, when we have two different kinds of functions, the approach to follow is draw the graphs and then find out the total number of intersecting points, right? Total number of intersecting points means the total number of solutions for my equation. So let's plot LHS. How do we plot the graph? We will learn this in the class. For now, there are different methods. One is to put the values of x equals to 0, 1, 2, minus 1, minus 2, minus infinity, plus infinity. These are the common values which you can put and approximate, visualize the pattern of the graph. Second is this is mod x, which means मैं x की जगह minus x डालूँ, my function will not change. So it has to be symmetric. It is an even function and it is symmetric about y-axis. तो ये x है, ये y है. इसका मतलब let's take x greater than 0. जो ग्राफ राइट हैंड साइड में होगा, सेम ग्राफ लेफ्ट हैंड साइड में होगा. यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो बच्चे गलती भी करते हैं. वो कहते हैं कि जो लेफ्ट साइड वाला होगा वो सेम राइट साइड वाला होगा, लेकिन नहीं. वो वाला ग्राफ, लेफ्ट साइड वाला ग्राफ तब रेप्लिकेट होता है राइट हैंड साइड में when this would have been e to the power minus mod x, because it is e to the power mod x. Power is always positive. इसका मतलब हमेशा इसका ग्राफ पॉजिटिव वाला ही रहेगा. So let's plot the graph. I don't have different colors of pen with me right now, so I'm using the same pen. Try to accommodate. X को 0 डाला, वैल्यू क्या आएगी 1. e to the power mod x हमेशा पॉजिटिव है, सबको पता है, थर्ड फोर्थ क्लास वाले बच्चों को भी पता है. तो ये वैल्यू हमेशा y एक्सिस पे ही होगी, राइट? पॉजिटिव y एक्सिस पे इसका ग्राफ होगा. x इंफिनिटी आएगा, x इंफिनिटी पे वैल्यू इंफिनिटी है, जो पॉजिटिव पे वो माइनस वही वैल्यूज नेगेटिव x पे भी है, राइट? तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, राइट? अभी ऑप्शंस अभी के लिए छोड़ दो, हमको ऑप्शंस की जरूरत नहीं है. इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, पॉजिटिव पे नेगेटिव. अगर ये e to the power x होता है गाइस, तो इसका वैल्यू क्या होता है? x माइनस इंफिनिटी पे वैल्यू 0. तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, राइट? ऐसा कुछ. बट बिकॉज e to the power mod x है, मुझे पता है x इक्वल्स टू 1 पे जो वैल्यू है इसकी सेम वैल्यू x इक्वल्स टू माइनस 1 पे होगी. इसका मतलब ये पॉजिटिव वाली चीज का मुझे मिरर इमेज लेना है अक्रॉस y एक्सिस. अभी समझ में नहीं आ रहा तो इट्स ओके, वी विल आल्सो डिस्कस दिस इन द क्लास, बट ट्राई करो. मतलब इट्स अ सिंपल कॉन्सेप्ट, सिर्फ विजुअलाइज करने का है. इसका ग्राफ कुछ ऐसे होगा, राइट? ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ कर दिया, और ये मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, नोट करना. दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है? दूसरा क्या गिवन है? एक्स क्यूब. एक्स क्यूब का ग्राफ क्या होता है?
मुझे पता है, आई थिंक ये तो सबको पता है राइट, एक्स क्यूब इज एन ऑड फंक्शन। तो 0 पे 0 है वैल्यू, नेगेटिव पे इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है राइट। एक्स 1 पे मुझे पता है इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 राइट। एक्स जब 1 है, एक्स 1 पे ये वाली एक्स, सॉरी ये ग्राफ है e टू द पावर x का, तो ये वैल्यू कितनी e कितना होता है 2.77, और x क्यूब पे क्या होगा जब x की वैल्यू 1 है, ये वैल्यू कितनी होगी अराउंड 1 ही रहेगी, तो ये वैल्यू कुछ नीचे रहेगी राइट। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे होगा, बट मुझे पता है कि ये वैल्यू कहीं तो बीच में जाके इंटरसेक्ट होगी राइट, क्योंकि मुझे ग्राफ में दिख रहा है कि यहाँ पे कर्वेचर कम है, तो यहाँ भी कर्वेचर कम होगा, इसलिए ये वैल्यू कहीं जाके तो इंटरसेक्ट होगी। तो ये बच्चों को यूजुअली दिख जाता है कि ये कहीं तो जाके इंटरसेक्ट होगी, कहाँ पे होगी क्या वो मुझे निकालने की जरूरत है, मुझे जरूरत नहीं है। वाई? बिकॉज क्वेश्चन में से टोटल नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स पूछे, कहाँ इंटरसेक्ट होगी ये नहीं पूछा है, तो ये कहाँ कहीं तो x ग्रेटर देन 1 पे जाके इंटरसेक्ट होगी। क्यों होगी ये भी देख लेते हैं। जब x की वैल्यू 1 है, लेट्स टेक e टू द पावर मॉड x, ये मेरा है x क्यूब और ये हो गया x राइट। तो जब x की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू e है, इसकी वैल्यू कितनी है 1 राइट। ये वाला फंक्शन नीचे है। लेट्स टेक जब x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी तो ये वाली वैल्यू बढ़ती जाएगी राइट। जैसे ये मान लो लेट्स टेक x इक्वल्स टू 2, ये कितना हो गया e स्क्वायर हो गया राइट। ये कितना हो गया, ये हो गया 8, सो ये कितना हो गया 2.77 का होल स्क्वायर, ठीक है। एंड ये वैल्यू कितनी 8। तो आप सिमिलरली ये पैटर्न देखोगे कि वेरी सून ये x क्यूब वाली वैल्यू ऊपर निकल जाएगी राइट। आप थोड़ा सा 1-2 वैल्यूज और लेके भी इस चीज को विजुअलाइज कर सकते हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये कहीं तो इंटरसेक्ट होगा। अभी तो ये इंटरसेक्ट हो गया राइट। अभी पता है कि ये वाला फंक्शन एक एल्जेब्रिक फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे तेज भागता है राइट। हमने बचपन में पढ़ा था 10th 11th 12th में कहीं तो कि टेलर सीरीज, मैक्लॉरिन सीरीज, ये सारी सीरीज होती है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है e टू द पावर x, एंड x क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 3x स्क्वायर। डिफरेंशिएशन क्यों कर रहा हूं मैं कह रहा हूं स्लोप, इसकी स्लोप ज्यादा है राइट, बिकॉज एक्सपोनेंशियल फंक्शन का स्लोप ज्यादा होता है एज कंपेयर टू 3x स्क्वायर एट अ हायर वैल्यू ऑफ x। हेंस मुझे पता है कि कहीं इंफिनिटी पे जाके तो e टू द पावर x वाला ग्राफ ओवरटेक डेफिनेटली करेगा राइट। अगर इसका वैल्यू, तो ये मेरा अगर ग्राफ आ रहा है, अभी ये ग्राफ नीचे हो गया है, x क्यूब का ग्राफ ऊपर है, e टू द पावर x का ग्राफ नीचे है, लेकिन ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो इसकी रेट ऑफ इंक्रीज बढ़ती जाएगी और इसकी रिलेटिवली स्लो होती जाएगी, विच मीन्स कहीं तो इंफिनिटी पे कहीं जाके ये ग्राफ दोबारा से इंटरसेक्ट करेगा और ये वाली वैल्यू हो जाएगी e टू द पावर x की। अगर दिख नहीं रहा तो आई एम सॉरी, बट ट्राई करो कि विजुअलाइज हो जाए। मैं वापस रिपीट करता हूँ कि e टू द पावर मॉड x का ग्राफ था कुछ ऐसा था, बट मुझे पता है ये वैल्यू हमेशा ये जल्दी जल्दी इंक्रीज होने लगेगा राइट। तो ये जो स्लोप है, ये स्लोप इसकी बढ़ती जाएगी जैसे जैसे x बढ़ रहा है। और ये मेरा दूसरा कर्व था x क्यूब का, तो मुझे यहाँ दिख गया था कि ये यहाँ पे तो कहीं इंटरसेक्ट करेगा x 1 से जब बड़ा होगा तो, बट कहीं इंफिनिटी पे जाके ये दोबारा से इंटरसेक्ट करेगा और x क्यूब का स्लोप कम हो जाएगा। इसीलिए अगर मुझे नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकालने या फिर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने, तो आंसर क्या होगा 2 एंड नॉट 1। बहुत लोग इसका आंसर 1 लगाते हैं क्योंकि ये इंफिनिटी वाला पॉइंट ये विजुअलाइज नहीं कर पाते। इसका मेजर कॉन्सेप्ट क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बहुत तेज चलता है राइट, उसकी स्पीड x क्यूब से ज्यादा होती है, इसीलिए ये कभी इंफिनिटी पे तो डेफिनेटली मिलेगा। फाइनली जाके e टू द पावर x ही ऊपर होगा, x क्यूब नीचे होगा, इसीलिए ये होगा। और अगर आपको ग्राफ्स पता है देन यू कैन वेरी वेल विजुअलाइज कि हाँ कहीं 1 2 3 के आसपास भी ये एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा जहाँ x क्यूब ऊपर हो जाएगा और e टू द पावर मॉड x नीचे हो जाएगा। अगर आप एग्जैक्ट वैल्यूज निकालने जाओगे, आई डोंट थिंक इट इज पॉसिबल मैनुअली एग्जाम में। यू कैन चेक ऑन मैटलैब या किसी भी सॉफ्टवेयर पे इसका ग्राफ, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। तो ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन इजी लगता है। दिस इज सॉल्वेबल विद इन 15-20 मिनट्स अगर आपके ग्राफ्स के कॉन्सेप्ट्स काफी अच्छे से क्लियर है तो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आंसर विल बी 2 एंड डू शेयर योर फीडबैक, और कुछ भी ऑल्टरनेट अप्रोच हो, मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल टू गेट एन एक्सेस टू द daily videos of the Prep Zone Challenger series. Thank you and have a good day.